Good morning, student. Today we are starting our chapter of bio, how do organism reproduce. So please note down all the notes and listen carefully. Okay, first of all, we have to understand the topic, what is reproduction. So the process by which plants and organisms produce the young ones or offspring of its own kind. मतलब दोस्तों, ये वो प्रोसेस है जिसके द्वारा प्लांट हो या ऑर्गेनिज्म एनिमल्स हैं अपने ही जैसे यंग वंस या ऑस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं, जिससे उनकी जनरेशन कंटिन्यू रह सके और पॉपुलेशन में इंक्रीज हो। तो यह रिप्रोडक्शन की बहुत ही इजी डेफिनेशन है जिसे आप समझ सकते हैं। लेकिन बेसिकली हमने रिप्रोडक्शन को दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। ओके, नाउ वी विल डिस्कस द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन जनरली। Basically, reproduction is classified into two types: asexual reproduction and sexual reproduction. So what is the major difference between them? We will discuss few examples. First of all, asexual reproduction occurs in unicellular organisms, but sexual reproduction occurs in higher plants and animals. It is the first difference. Second difference, gametes are not produced. In sexual reproduction, the reproductive organ of the animals produce the gametes. The gametes are produced by reproductive organs. In case of sexual reproduction, the male and female organism both produce a two type of gametes. The male organs produce sperms and female or reproductive organ produce the ovum. Third difference is fusion of gametes does not take place in case of asexual reproduction. But if we discuss about sexual reproduction, fusion of gametes like sperm and ovum take place and give rise to zygote. This is the very important difference in sexual reproduction and asexual reproduction. So these are the 3 points. You please note down the 3 points and then I will mention the 4th point. Okay. Fourth difference is the parent body
get disappear in asexual reproduction. And very important point is parent body divides and give rise to two daughter cell. दोस्तों एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो पेरेंट बॉडी है वो थोड़ा ग्रो करती है और फाइनली वो दो में डिवाइड हो जाती है। इस तरीके से पेरेंट बॉडी डिसअपियर होती है और हमें दो डॉटर सेल मिलती है और हम इसे देख करके ये नहीं बता सकते कि इसमें से पेरेंट बॉडी कौन सी थी। बट इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन it does not occur. Parent remains present. Parents remains present in sexual reproduction. मतलब ऐसा कुछ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट the offspring is genetically and morphologically identical to parent. No variation is present or can be seen. मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर सिर्फ डीएनए का कॉपी होता है और पेरेंट बॉडी दो में डिवाइड हो जाती है। इस तरीके से बाहर से कोई जेमेट्स और जेनेटिक मटेरियल बाहर से मिलता ही नहीं है। इसलिए जो ऑफस्प्रिंग होते हैं वो अपने पेरेंट के 100% आइडेंटिकल होते हैं, बिल्कुल हम उसकी कॉपी भी कह सकते हैं और उनके अंदर कोई भी वेरिएशंस नहीं होती। वेरिएशन मतलब बॉडी में कोई चेंजेस। बट इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन व्हाट हैपेंस, gametes from both the parents fuses and forms the zygote. So offspring contains the genetic information and characters of both parents, and variation is present. मतलब होता क्या है, मेल से स्पर्म और फीमेल से ओवम मिलता है। That also contain the genetic information of both the parents, and when these both combine together and give rise to the offspring, this offspring contains the genetic information of both the parents, and finally it helps in development of characters of both the parents, and variation can be seen. उनकी बॉडी में चेंजेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप कभी कुछ बच्चों को देखते हैं या सुनते हैं कि इस बच्चे की शक्ल अपने फादर से मिलती है, लेकिन कुछ कैरेक्टर्स इसको अपने मम्मी या दादी से मिलते हैं या नानी से मिलते हैं। उसका कारण क्या होता है? उसका सिंपल कारण ये होता है कि जीन्स के अंदर जो इंफॉर्मेशन है वो कंबाइन होती है, तो कंबाइन होने के बाद वो सारे कैरेक्टर्स ऑफस्प्रिंग में डेवलप हो जाते हैं। फाइनली इन चेंजेस को ही हम वेरिएशंस कहते हैं, और ये वेरिएशन ऑर्गेनिज्म को हेल्प करते हैं, इवोल्यूशन में भी हेल्प करते हैं। हाँ, इवोल्यूशन का टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। इवोल्यूशन क्या है? बेसिकली
Due to the continuous reproduction, the characters which are present in their DNA and acquired from the environment, that also passes to the next generation. And when these variations comes, this helps the organism to survive in adverse condition. जैसे अगर ऑर्गेनिज्म किसी एक इन्वायरमेंट में रह रहा है तो कॉन्टिन्यूसली वहां रिप्रोड्यूस करने से इन्वायरमेंट की बहुत सारी जो चेंजेस हैं उसके अगेंस्ट में उसकी बॉडी में कुछ इम्यूनिटी या रेस्पॉन्स डेवलप हो जाते हैं जो उस इन्वायरमेंट में उसका हेल्प करते हैं। तो इस तरीके से ये कॉन्टिन्यूसली बाय डीएनए पेरेंट से ऑस्प्रिंग, ऑस्प्रिंग से फर्दर नेक्स्ट जनरेशन तक पास होती है और इस तरीके से उसकी बॉडी के अंदर वेरिएशन डेवलप हो जाते हैं। यही वेरिएशन एडवर्स कंडीशन में उसको सर्वाइव करने में हेल्प करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम नॉर्मल जो बियर है जो हमारे इंडिया में पाया जाता है ब्लैक, उसको अगर हम पोल्स पे भेज दें तो वो कुछ दिनों में मर जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी जो डेवलप हुई है, उसकी बॉडी में जो कैरेक्टर्स हैं वो सिर्फ इंडिया के जो कैरेक्टर्स हैं, इंडिया का जो एनवायरनमेंट है इसके हिसाब से ही एडजस्ट है, इसके हिसाब से उसने अपने आप को ढाला है तो वहां सर्वाइव कर सकता है। बट पोलर बियर है, उसकी ब्लैबर की लेयर करीबन 6 इंच मोटी होती है, फैट लेयर। उसके अलावा उसके जो हेयर्स हैं वो लॉन्ग होते हैं और वो व्हाइट कलर के होते हैं, कामोफ्लैज में हेल्प करते हैं। फाइनली उसकी जो बॉडी है हजारों साल के अंदर जेनेटिकली मेकअप की वजह से भी और एक्वायर्ड कैरेक्टर की वजह से भी इस तरीके से मॉडिफाई हो चुकी है कि ये वेरिएशन अब उसको हेल्प कर रही है पोलर रीजन में, जहां माइनस में 56 डिग्री तक टेम्परेचर होता है, वहां इजीली सर्वाइव कर सकता है। तो दैट इज द वेरिएशन दैट हेल्प्स द ऑर्गेनिज्म। ओके, नेक्स्ट वी विल डिस्कस द टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन।